Hello guys, again you are welcome to my channel Literature Classes. This is Abhilasha. Guys, today I am going to talk about Edmund Spenser, a renowned poet, or we can say author, and he belonged to Elizabethan era, and Spenser is one of the renowned poet that he is famous for his work Fairy Queen, which is an allegorical poem. So guys, I'm going to talk about Edmund Spenser in this video. So stay tuned with me till the end. Let's get started. Edmund Spenser. Edmund Spenser is a poet of Elizabethan era. He was born in 1552 and in which place? In East Smithfield, London, around 1552. Why this? Because we cannot say, we don't have any exact clue of his birth date. So around there are many sources by which we can guess that it is the date of birth 1552. Spenser was the son of a John Spenser, who is a journeyman clothmaker. He was his father. Who was his father? John Spenser. And he was educated in London at the Merchant Taylors' School. Who? Spenser. Spenser was educated in London at the Merchant Taylors' School and Pembroke College, Cambridge. यानी स्पेंसर जो है वो क्या है, स्मिथफील्ड लंदन में 1552 के अराउंड में इनकी बर्थ है. एंड स्पेंसर जो हैं वो क्या है, एक जर्नीमैन क्लॉथ मेकर के बेटे हैं जिनका नाम है जॉन स्पेंसर. एंड वो क्या है, मर्चेंट टेलर स्कूल और पेम्ब्रुक कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं. ही लेफ्ट कैम्ब्रिज in 1576. Guys, I am telling you only the important facts of Spenser, because if you are preparing for UG Senate, UPHSC Higher Education Commission, or you are preparing for any other competitive exam like MP, Assistant Professor and other higher examination, so this Edmund Spenser is asked in this examination. So you must know the important facts related to Spenser, not the entire thing about Spenser's biography. So I am only telling you the important facts from where the question can be asked. So move to the next point. He left Cambridge in 1576 and for a few years his movements are unknown, though he probably spent the time in north of England. यानी कैम्ब्रिज उन्होंने जहाँ पे ये पेम्ब्रुक कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया 1576 में और कुछ साल के लिए वो कहाँ रहे ये अननोन है. दो ही प्रोबेबली स्पेंड द टाइम, यद्यपि ही प्रोबेबली शायद उन्होंने अपना समय बिताया नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में. Clear? See the next point. In 1580, he was appointed secretary to Lord Grey de Wilton. Lord Grey de Wilton, who had just been appointed Lord Deputy of Ireland. See, 1580 में, in 1580, he was appointed as a secretary of Lord Grey de Wilton. Lord Grey de Wilton के secretary के रूप में अपॉइंट किए गए कब? 1580 में. और जो कि क्या थे, वो भी तभी क्या बने थे, लॉर्ड डिप्टी ऑफ आयरलैंड बने थे. क्लियर? सी द नेक्स्ट पॉइंट. इन 1590 ही विजिटेड लंदन टू पब्लिश द फर्स्ट 3 books of Fairy Queen. The first 3 books of Fairy Queen. Guys, the spelling is wrong here. Fairy Queen, the correct spelling which is given, or I can say which is mentioned in the publication of the book, that is Faerie. Clear? So
In 1590 he visited London to publish first 3 books of Fairy Queen. With whom? With Walter Raleigh. वॉल्टर रेली के साथ में 1590 में वो लंदन में अपनी बुक फेरी क्वीन को पब्लिश करने गए. गाइस, फेरी क्वीन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क फ्रॉम वेयर सेवरल टाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर इन यूजीसी एग्जामिनेशन. देयर आर सेवरल टाइम्स यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर? तो फेरी क्वीन का आई विल upload a separate video of Fairy Queen with important facts, and I will try to explain the summary also. So in the later part of this video I will talk about Fairy Queen when I will talk about the work of Spenser. Now, after remaining in London for nearly 2 years, he returned to Ireland and got married an Irish woman much younger, Elizabeth Boyle, in 1594 when his first wife died. अब देखिए 1590 में वो लंदन जाते हैं फेरी क्वीन को पब्लिश कराने. किसके साथ में? वॉल्टर रेली के साथ में. यानी वॉल्टर रेली की हेल्प से ही उन्होंने फेरी क्वीन को पब्लिश कर पाया था. इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दैट आई विल टेल यू लेटर इन द सेम वीडियो. ठीक है. और आफ्टर रिमेनिंग लंदन में कुछ समय रहने के बाद, जब ये फेरी क्वीन को पब्लिश कराने गए, उसके कुछ समय बाद ये वापस आयरलैंड आ गए जहाँ से ये बिलोंग करते हैं. एंड गॉट मैरिड, और इन्होंने शादी कर ली किससे? एक आयरिश वुमेन से. आयरिश वुमेन कौन थी? जो कि बहुत कम उनसे काफ़ी छोटी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ बोयले. कब की? 1594 में. समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक फ्रॉम whom he got married, or the name of the wife of Spenser, or the year in which year he got married to Elizabeth Boyle. Maybe the question can be asked, like UGC NET exam never asks the question related to biography, but the important facts can be asked, like Elizabeth Boyle is one of the important lady of Spenser's life, like he has dedicated his sonnets. So maybe the question can be asked like here in which year he got married. So that is why I have mentioned this statement or this important facts of Spenser in this video. So when his first wife died, after his first wife's death, अपनी पहली वाइफ की डेथ के बाद में इन्होंने एलिजाबेथ बोयले से 1594 में, जो कि बहुत यंग थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली. ही रिविजिटेड इन लंदन. अगेन ये लंदन गए इन 1595, ब्रिंगिंग अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट. और क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज ग्रेट वर्क. इसी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले करके ये रिविजिट किए. कहाँ पे? लंदन में 1595. Actually the slides are made according to the year, so that the chronology of the writer cannot be forgotten. ठीक है. मैंने इसको chronological order में facts को बनाया है ताकि आप क्या करें, इसको भूलें ना. ठीक है. तो 1595 में अगेन ये लंदन गए और वहाँ पे क्या किया इन्होंने? अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अपने ग्रेट वर्क, यानी कि ग्रेट वर्क कौन सा इनका? फेरी क्वीन. फेरी क्वीन को इन्होंने जाकर के वहाँ फिर से उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेकर गए. ही रिटर्न टू किलकॉल मैन इन 1598. 1598 में वापस किलकॉल मैन आए, विच वॉज अल्टीमेटली बर्न डाउन, जो कि क्या हुआ? जल गया. किलकॉल मैन क्या है? उनका एक कैसल था जहाँ पे वो रहते थे. वन ऑफ हिज चिल्ड्रन पेरिश्ड इन द फायर, और इस फायर में उनका एक चिल्ड्रन है जो कि क्या हो गया था? पेरिश्ड हो गया था, बरिड हो गया था. अ ruined and disappointed man, he returned to London, where in the next year he died for want of bread at the age of 46. Now 1598 में वो किलकॉल मैन वापस आए, और वहाँ पर जो कि क्या हुआ? उनका जो किलकॉल मैन जो कैसल था वो क्या हुआ? बर्न हो गया. वन ऑफ हिज चिल्ड्रन, और उस फायर में उनका एक बेटा भी एक्सपायर हो गया. अ ruined and disappointed man. Now Spenser was so much disappointed, he was ruined. So वो वापस लंदन फिर से आए. Where the next year, वहाँ जहाँ पे 1598 में वो आए. किलकॉल मैन वापस लंदन कब गए? 1599 में, नेक्स्ट ईयर.
और वहां पर उनकी डेथ हो गई कैसे, फॉर वांट ऑफ ब्रेड एट द एज ऑफ 46। कितनी एज में, 46 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आज लाइक इन विच एज और सॉरी हाउ मेनी ईयर्स ही स्पेंसर डाइड और सॉरी हाउ मेनी ईयर्स स्पेंसर लिव्ड, क्लियर। सो 40 ईयर्स के की एज में उनकी डेथ हो गई, बहुत जल्दी डेथ हो गई उनकी, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि उनका कैसल बर्न हो गया है और उनका एक बेटा उसमें एक्सपायर हो गया, दिस न्यूज वॉज गिवन बाय बेन जॉनसन, ओके, बेन जॉनसन ने ही उनको ये न्यूज दी थी, क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज बरीड इन पोइट्स कॉर्नर in Westminster Abbey. Guys, this Poets Corner is one of the best place, or we can say one of the important place where the several writers are buried. बहुत सारे writers को क्या है यहाँ वेस्टमिनिस्टर एबी, जिसको कि पोइट्स कॉर्नर भी कहते हैं, यहाँ पे इनको बरिड किया गया बहुत सारे पोइट्स को। तो ये भी एक पोइट थे उन ग्रेट पोइट्स में जिनको कि वेस्टमिनिस्टर एबी में जगह मिली। See the next point, the first major work of Spencer. Now I am moving towards the important works of Spencer. The major work of Spencer, the Shepherd's Calendar, appeared in 1579. जो इनका important work था और I can say major work था Spencer का Shepherd's Calendar, जो कि कब आया है, 1579 में आया है, ठीक है। इट फॉलोड वर्जिल्स इकोलॉग्स, और ये किसको फॉलो करता है, वर्जिल्स इकोलॉग से, वर्जिल इकोलॉग को फॉलो करता है, या उससे इंस्पायर होकर के इन्होंने ये वर्क लिखा था, जो कि कब आया था, 1st century BCE में। एंड द इकोलॉग्स ऑफ मैंटून बाय बैप्टिस्टा मैंटून्स अर्ली रेनेसा पोएट। गाइज दिस स्पेलिंग देयर इज एन स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज अर्ली, ठीक है, EARLY है, इसको करेक्ट कर लेना। स्लाइड में कभी कभी वर्ड्स का टाइप करते समय क्या होता है कि वर्ड्स छूट जाते हैं कभी कभी, तो डोंट मिसअंडरस्टैंड और डोंट आप बॉदर ना करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। अर्ली की स्पेलिंग मैंने ऊपर लिख दी है। तो बैप्टिस्टा मैंटून्स जो कि अर्ली रेनेसा पोइट हैं, जिनका वर्क है इकोलॉग्स ऑफ मैंटून्स एंड वर्जिल्स का इकोलॉग्स, इन दो वर्क से इंस्पायर होकर के इन दो वर्क्स को फॉलो किया है स्पेंसर ने अपने वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है। एंड दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। इन्होंने ये वर्क किसको डेडिकेट किया है, फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है, ठीक है। एंड ये क्या है, एक पास्टोरल डायलॉग्स में लिखा गया है। कैसे लिखा गया, पेस्टोरल डायलॉग्स में। पेस्टोरल डायलॉग क्या होता है, पेस्टोरल जो एक फॉर्म है उसमें इन्होंने लिखा है। पेस्टोरल क्या होता है, वेन एवर एनी वर्क हैविंग द पेस्टोरल कैरेक्टर्स, जैसे कि जो क्या होते हैं कुछ शेफर्ड्स जिसमें रोल प्ले कर, सिंपली समझ लो, जिसमें शेफर्ड्स जिस वर्क में रोल प्ले करते हैं वो पेस्टोरल वर्क होता है, ठीक है। और शेफर्ड्स की सिंपल लाइफ को उसमें डिस्कस किया जाता है, उनके लव अफेयर को, जो भी चीज़ें हैं सिंपल लाइफ को उसमें क्या होता है, डिस्कस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल, ठीक है। तो जो एडमंड स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर है दैट इज ऑल्सो अ पेस्टोरल वर्क, ठीक है। एंड इसमें उन्होंने 12 इकोलॉग्स यानी 12 मंथ्स ऑफ इंग्लैंड, जो 12 मंथ्स है इंग्लैंड के, उसके बारे में उन्होंने इसमें क्या किया, बात की है। इसमें उन्होंने 12 मंथ्स का डिस्कशन किया है, ठीक है। कैलेंडर के जो 12 मंथ्स होते हैं उसका डिस्कशन किया है, किसका, कैलेंडर के। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फेरी क्वीन। वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ स्पेंसर इज एन एपिक पोम। इट इज कॉल्ड एज एन एपिक पोम। द फर्स्ट 3 बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1590। फर्स्ट 3 बुक्स जो हैं वो कब आई हैं, 1590 में आई हैं। द सेकेंड 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन इज पब्लिश्ड इन 1596. In Spencer's A Letter of the Authors, he states that the entire poem is cloudily enwrapped in allegorical devices and that the aim behind the fairy queen
was to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline. फेरी क्वीन जो है वो क्या कहा जाता है, एक एपिक पोएम है जिसकी फर्स्ट 3 बुक्स 90 में आई हैं, 1590 में, एंड सेकेंड बुक 1596 में पब्लिश्ड हुई हैं. गाइज एक्चुअली देर आर 3 वर्जन ऑफ फेरी क्वीन. लाइक the fairy queen is one more important thing is that it is published by the help of Walter Raleigh. Like Walter Raleigh has presented, like Walter Raleigh has advised Spencer to present this fairy queen before Queen Elizabeth so that you will get rewarded. ठीक है, तो जो वॉल्टर रेली हैं ये इनको लंदन ले गए 1589 में. कब? 1589 में ये लंदन गए. वहाँ जाकर के इन्होंने ये बुक एलिजाबेथ के सामने, क्वीन एलिजाबेथ के सामने इन्होंने प्रेजेंट किया. ठीक है, और वहाँ पर जब ये गए तो इन्हें क्वीन एलिजाबेथ को वो बुक इतनी पसंद आई कि शी हैज़ रिवॉर्डेड, शी हैज़ डिसाइडेड टू गिव द पेंशन ऑफ 50 पाउंड. ठीक है, 50 पाउंड की जो पेंशन थी वो इन्होंने, $50 की या जो 50 पाउंड की जो पेंशन थी वो इन्होंने $50 की जो पेंशन थी वो इन्होंने क्या किया है, इसके लिए डिसाइड की स्पेंसर को देने के लिए. ठीक है, तो आफ्टर दिस लॉर्ड बर्गले जो हैं इन्होंने क्या की, इनकी पेंशन को रुकवा दिया. इनकी पेंशन को किसने रुकवाया है? लॉर्ड बर्गले ने. लॉर्ड बर्गले ने इनकी पेंशन को रुकवा दिया. आफ्टर दैट जब लॉर्ड बर्गले ने इनकी पेंशन को रुकवाया तो स्पेंसर हैज रिटन अ लैम्पून, अ सैटारिकल वर्क फॉर Lord Burghley. The work is Mother Hubbard's Tale that I will tell you in later slides. ठीक है, इन्हीं लेटर स्लाइड में मैंने उसको भी ऐड किया है. तो ये क्या है, फेरी क्वीन था. नेक्स्ट इज in 1591 he published Complaints, a collection of poems that express complaints in mournful or mocking tones. नेक्स्ट इनका जो वर्क है 1591 में आया है, जो कि कौन सा वर्क है? कंप्लेंट्स इन्होंने लिखा है, जो कि क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दैट एक्सप्रेस कंप्लेंट्स. जो क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लेंट को एक्सप्रेस करता है, कंप्लेंट्स के बारे में बताता है. ठीक है, और इसमें क्या है, मोर्नफुल और मॉकिंग टोन्स का एक्सप्रेशन है. मोर्नफुल और मॉकिंग टोन्स को दिखाया गया है. सी द नेक्स्ट पॉइंट. In 1595, Spencer published Amorety and Epithalamion. These are also the work of Spencer, Amorety and Epithalamion. There were 88 sonnets written in praise of Elizabeth Boyle. Now, 1595 में स्पेंसर ने क्या किया है, एमोरिटी एंड एपिथेलमियन को पब्लिश किया, जिसमें कितने सॉनेट्स थे? 88 सॉनेट्स थे, जो कि किसके प्रेज में लिखे गए? एलिजाबेथ बॉयले की प्रेज में लिखे गए. इन्हीं को ये डेडिकेट किए हैं इन्होंने. ठीक है, क्यों डेडिकेट किए हैं? इन्होंने उनसे शादी की थी. ठीक है, 1594 में जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो इन्होंने उनसे शादी की थी, और 1595 में इन्होंने उन्हीं की प्रेज में, एलिजाबेथ बॉयले की प्रेज में इन्होंने क्या लिखा है? एमोरिटी एंड एपिथेलमियन एक वर्क लिखा है, दैट इज कॉल्ड अ सोनेट कलेक्शन. And how many sonnets are there? 88 sonnets. This is a question of UGC NET exam. ठीक है, how many sonnets are there in Amorety and Epithalamion by Edmund Spenser? So you have to remember that there are 88 sonnets, and whom these are dedicated. ये भी question आ चुका है कि Amorety and Epithalamion written by Edmund Spenser is dedicated to whom? So it is dedicated to Elizabeth Boyle, or it is written in praise of Elizabeth Boyle. Who is Elizabeth Boyle? Edmund Spenser's wife. Who when they got married? They got married in 1594. And why? After the death of his first wife.
ठीक है, तो देर आर सेवरल क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड विद अ term, or we can say with a fact. So you have to just remember in this way to correlate. ठीक है, आफ्टर कोरिलेटिंग द थिंग्स यू कैन इजिली रिमेंबर. तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपको याद रखना है. सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंसर रोट प्रोथैल्मियन. एक उन्होंने वर्क लिखा है प्रोथैल्मियन, अ वेडिंग सॉन्ग फॉर द डॉटर्स ऑफ अ ड्यूक एलिजेटली इन होप्स टू गेन फेवर इन द कोर्ट. एक वेडिंग सॉन्ग है, प्रोथैल्मियन क्या है, एक वेडिंग सॉन्ग है जो कि इन्होंने किसके लिए लिखा है, डॉटर्स ऑफ ड्यूक, ड्यूक की डॉटर्स को एलिजेटली इन होप्स टू गेन फेवर इन द कोर्ट. वो इसलिए इन्होंने लिखा ताकि इन्हें क्या हो, कोर्ट में इनको और भी फेवर मिले. ठीक है, इसलिए इन्होंने एक और वर्ड लिखा प्रोथैल्मियन. ठीक है, क्लियर. सी द नेक्स्ट पॉइंट, अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. नेक्स्ट इन्होंने जो वर्क लिखा है दैट इज अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स. इनका डिटेल नहीं पूछा जाता, लेकिन समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक हु रोट दिस वर्क अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड 1594, एंड यू विल बी गिवन 4 writers name and you have to choose the writer of the same work. So you have to remember these work. You have to just keep in mind that these works are written by Edmund Spenser. The next is Ruins of Time. The Ruins of Time. Next important work of Spenser is The Tears of the Muse. Tears of the Muse. Next is Mother Hubbard's Tale. This is a lampoon for this is a satirical work we can say written for Lord Burghley. मैंने अभी बताया आपको, लॉर्ड बर्गले ने स्पेंसर की जो है पेंशन रुकवा दी थी, जो उन्होंने जो क्वीन एलिजाबेथ ने इनके लिए डिसाइड की थी. ठीक है, तो आफ्टर दैट उन्होंने इसको रिज्यूम कराने के लिए इन्होंने क्या किया, एक लैम्पून लिखा था, दैट इज मदर ह्यूबर्ट्स टेल. नेक्स्ट इज द रूइंस ऑफ रोम. This is also an important work. Then Four Hymns. These are some important works of Spenser. I have discussed in whatever the important facts related to these works. So I hope you will remember these points. See the next point. Now we are moving towards the criticism or we can say the praise, whatever. मतलब कुछ statements दिए गए हैं स्पेंसर के लिए अदर राइटर्स के द्वारा, या तो उन्हें प्रेज किया गया, या उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है, या उन्हें इंस्पायर किया गया है. तो ये क्या है, ये स्पेंसर की लाइफ से रिलेटेड ही फैक्ट्स हैं, तो ये भी हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है. सी, चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट. चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को प्रेज किया है और बोला है द पोइट्स पोइट. क्या बोला है, पोइट्स पोइट. दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जाम. ठीक है, तो मे बी यूपीएचएससी में या एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में या यूपीएससी में अगर स्पेंसर मेंशन है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, स्पेंसर वॉज एडमायर्ड बाय जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड टेनिसन एंड लॉर्ड बायरन. स्पेंसर को किसने एडमायर किया है, one is John Milton, another is William Blake, next is Wordsworth, Keats, Tennyson and Byron. ये स्पेंसर के एडमायरर्स थे जिन्हें स्पेंसर बहुत पसंद थे. नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन मेंशंस इन एरियोपेजिटिका. एरियोपेजिटिका द वर्क इज रिटन बाय जॉन मिल्टन. देखिए, जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा है एरियोपेजिटिका. मैं एरियोपेजिटिका के बारे में बताऊंगी कि जो एरियोपेजिटिका वर्क है दैट इज अ वर्क रिटन फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस की फ्रीडम के लिए, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उसकी फ्रीडम के लिए ये वर्क लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, एरियोपेजिटिका. क्या इसमें बताया गया है, एक्चुअली जो जॉन मिल्टन थे वो ये चाहते थे कि जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो जो भी वर्क लिखें दैट शुड बी पब्लिश्ड. ठीक है, उन्हें पब्लिश किया जाए. जो भी वर्क लिखा जाता है, राइटर को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो भी वर्क लिख रहा है वो उसे पब्लिश करा पाए. ठीक है, इतनी उसे फ्रीडम होनी चाहिए. तो उस फ्रीडम के लिए इन्होंने वर्क लिखा है एरियोपेजिटिका. सी, जॉन मिल्टन मेंशंस इन एरियोपेजिटिका, आवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर, whom I dare be known to think a better tear than Scouts or Aquinas. ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने
स्पेंसर के लिए बोला अवर सेज एंड सीरियस पोइट स्पेंसर। क्या बोला है? आर सेज एंड सीरियस पोइट स्पेंसर, अवर आर जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो मिल्टन ने उनके लिए ये बात बोली है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 18th सेंचुरी अलेक्जेंडर पोप, इन 18th सेंचुरी अलेक्जेंडर पोप compared Spencer to a mistress whose faults we see but love her with them all। 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर को कंपेयर किया है टू अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी सी, जिसके हम फॉल्ट्स को देखते हैं, बट लव हर विद देम ऑल। लेकिन मतलब 18th सेंचुरी में पोप ने स्पेंसर को कंपेयर किया है एक मिस्ट्रेस से और बोला है कि उसकी फॉल्ट्स को हम देखते हैं बट फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं। तो these were some criticisms, or we can say there's some inspiration, some admirers are there of Spencer, ठीक है। तो ये कुछ लाइफ के उनके और स्पेंसर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हों। तो नाउ that's it for this video. I will soon meet you with the next video. If you have any queries or doubts related to this video, kindly mention it in the comment section below. I will definitely answer your question, and thank you for watching.